جب ہوش بھی نہیں تھا، جب سے میں نے ابا کے سامنے ان کی نقل کر کے ان کے سامنے گاتا تھا تو بہت اچھا لگتا تھا۔ او میرا سونا ماہی آجا آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد چمٹا کب سنبھالا؟ تیر چڑھ گئی پورے سہیلیاں دا تے ایک دن سا پردیسیاں اتھوں ٹر جانا اے کنڈا مار کے انہاں حویلیاں دا چھڑ یار عارف تیرا دنیا تے کم کی ہووی ٹر گیا جے دے دم نا دے دم سی ایویں ہاری ساری نو نہیں سجنے بنائی دا او دل میں کہا والا۔ یار عارف تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ جب والد صاحب کو یاد کرتے ہیں تو ان کا کون سا کلام آپ گنگناتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ اوہو، جوان عمری میں آپ نے اپنے شریک حیات کو بھی کھو دیا۔ محبت لٹے تے ہو جان دیوانے، جس تن نو لگ دیئے او تن جانے، او جس تن نو لگ دیئے او تن جانے۔ سبحان، امی نے بہت دعائیں کی، تینوں ہیرو کوئی نہیں لینا۔ ماں کے لیے جو ہوتا ہے نا، وہ چاہے بچہ زیرو ہو وہ ہوتا ہیرو ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو وہ ہمیشہ مجھے پوچھتی تھی کہ آپ کو ہیرو کوئی نہیں لیتا میرا پتر؟ واہ، باپ کو جو دباتا تھا، جو میں پاؤں دباتا تھا، پاؤں ان کے جتیاں سیدھی کرتا تھا، آج اس کے بھاگ لگے ہوئے۔ جو بندے ویلے شان سی ہر تابعہ انسان سی، ہاں نشے دا ایک دوران سی، ہاں ایک آل دا مہمان سی، ہاں، ہن پھر نہیں میں آونا، یہ جاندی واری کہہ گیا، میں ویکھدا ہی رہ گیا، ہائے، میں ویکھدا ہی رہ گیا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے عامر لیاقت صاحب یاد آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نفاست کو اور اس لہجے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ کسی کی یاد تو رکھی آپ نے۔ ارے 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 ارے، واہ واہ واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جہاں جہاں پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ہم کو سنا جا رہا ہے، ان کو انتہائی ادب سے السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج بھی ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ ایک انتہائی عظیم شخصیت ہیں۔ فریم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان کا تعارف میں اس طریقے سے کراؤں گا کہ یہ فوک سنگر ہیں، بھنگڑا کنگ ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں اور ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں۔ جب گاتے ہیں تو دلوں کے چھڑ جاتے ہیں تار۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو سنا جائے بار بار۔ نہ صرف گائکی میں بلکہ درویشی میں بھی ہیں ان کے جدید افکار۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ دی لیونگ لیجنڈ عارف لوہار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو دیکھ کر تو چونکہ ابھی تو الحمدللہ ہم جوان ہیں، مگر مزید جوانی اختیار کر رہے ہیں بھائی ہم، اور جو بوڑھے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ تو مزید ماشاءاللہ جوان ہو جاتے ہوں گے۔ کوشش کی تھی کہ ناکام کے عارف لوہار بن کر آؤں۔ نہیں، آپ بالکل عارف لوہار سے خوبصورت ہے۔ سر آپ کی حسن نظر ہے، عارف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت عطا فرمایا، عنایت فرمایا۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مختصر سا ہمارا آج سیشن ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم چٹ چیٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ اچھا، ماشاءاللہ ایک بڑا خاندان ہے، بڑے باپ کے اولاد ہیں، اور آپ ماشاءاللہ 8 بھائی ہیں۔ 8 بھائی جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ 8 بھائیوں میں سے فقط ایک ہی عارف لوہار بنا؟
बात है कि ये अब्बा का फैसला था, मेरे अब्बू का, और बाकी तो बड़े जो सबसे बड़े भाई मेरे वो डॉक्टर थे और हार्ट स्पेशलिस्ट माशाल्लाह उनकी वो पोजीशन पे बने। अब हमारी फैमिली जो सारी डॉक्टरों की है, अच्छा तो माशाल्लाह। माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे हैं, अपने कोई बिजनेसमैन, कुछ अरसा हम लोग इकट्ठे भी रहे, फील्ड में आए, लेकिन वो फिर अपने अपने ऐसे एक वक्त आता है कि अब्बा के इंतकाल के बाद फिर वो बाहर चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहाँ जाके वहाँ पे किसी ने बिज़नेस कर लिया, कोई डॉक्टर बन गए, कुछ इस तरह करके। जो सबसे बड़े मेरे भाई हैं माशाल्लाह से डॉक्टर अरशद लोहार, अच्छा तो माशाल्लाह। वो माशाल्लाह से डॉक्टर हैं। मेरे भतीजे डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, कोई लॉयर, जी जी माशाल्लाह। ऐसे करके सारी फैमिली का सेटअप। अच्छा, ये किस उम्र में आपने ये अपने फ़न की जानिब आप गामज़न हुए? जब होश भी नहीं था, जब से मैंने अब्बा के सामने उनकी नकल करके उनके सामने गाता था तो बहुत अच्छा लगता था। और मेरी माँ कहा करती कि कि आपको जब पूछते थे ना कि आप किसके बेटे हो, तो मैं कहता था आलम लोहार, तो वो खुश हो जाते थे, हंसते थे बहुत ज़्यादा। आलम जानता था ना। तो मुझे नहीं मालूम है किसके सामने क्या कह रहा हूँ। सो मैंने गेटअप वैसे किया होता था, बातें भी वैसे करता था और गाता भी था। छोटा सा था जब बच्चे को होश नहीं होती, कोई 3-3.5 साल का बच्चा जिसके लाड सारे उठा रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि वालिद साहब ने, आलम लोहार साहब ने चिमटे से अपने करियर का आगाज़ किया, तो ये चिमटे की दर हकीकत क्या है? चिमटा एक फ़कीरी साज है, हाँ। और सदा जब देते थे कोई फ़कीर आके, तो वो चिमटे की आवाज़ के साथ मिला के अपनी आवाज़ सदा देते थे, अमन की, मोहब्बत की। और ये सदियों पुराना एक दरवेशी साज है। तो वैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बनते हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए बनती हैं। वाह वाह वाह। वो मंसूब हो जाती है जब अल्लाह ताला करम करता है। तो वाह वाह। वो शायद दरवेशी आवाज़ थी मेरे वालिद साहब की, वो अंदाज़ जो था, अंदाज़ बयां जो सूफ़ी था, तो वो उसमें लोगों को बड़ा पसंद आया कि वो आलम लोहार की निस्बत से लोहा, तो वो फिर लोगों को शायद ये इम्तिज़ाज़ अच्छा लगा। वाह वाह। जब अल्लाह करम करने पे आए तो फिर डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आरिफ साहब, आप नहीं समझते कि यहाँ बहुत कुछ गलत उलाम है हमारे यहाँ, और वही जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है? जैसे लोग इसको चुमटा बोल देते हैं, और रेख्ता में चुमटा बोसो किनार को कहा जाता है, यानी किसी को चूमना चुमटा कहलाता है। और आपने तो चिमटे को यानी लोग तो इसको जलाते रहते थे, आपने तो इसको हयात बख्श दी। ये करम है। लोग तो सिर्फ जलाते थे, आपने चिमटे को हयात बख्श दी। हाँ नहीं, ये अल्लाह का करम है, उसी की करम नवाजी है। शनाख्तें वो बनाता है, वही बनाता है, वही मिटाता है। और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ दुनिया में आनी होती है, वो उसे किसी भी नाम से अब पुकारा जाए तो वो बखूब लोग जानते होते हैं कि किसकी निस्बत से कौन सी बात आप कर रहे हो, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँच रही हो। बंदे अवेयर हैं इस चीज़ से, वो उनको मालूम है, शनासाई है, वाकफियत है। हाँ, उनको शनासाई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने होश संभालने के बाद चिमटा कब संभाला? होश से पहले ही पकड़ा था। अब्बा ने छोटा सा लेके मुझे बना के दे दिया। हाय हाय हाय। तो वो बस देखते थे कि खिलौना नहीं होता, जैसे मिट्टी दे बावे ऐसे सारे। तो ये जो चीज़ें होती है डॉक्टर साहब, ये निस्बत से बड़ी वो होती है, ताल्लुक़ होता है। एक हवेली बहुत बड़ी जिसमें इतने लोग रह रहे होते हैं, जिसमें 5 बहनें, 8 भाई, और इतना बड़ा ख़ानदान जिसमें दादा दादी सब लोग के चहल बहल, एक पुरसकून माहौल, जिसमें एक एनवायरनमेंट, सुबह चिड़ियों का चहचहाना, इतना टाइम होता था उसे सुनना, आसमान की तरफ देखना, उसके तारे देखने, सितारे देखने, चांद देखना, उसकी खुशी। यानी आज जो चांद की रोशनी से एक खूबसूरती है जो हम देख रहे हैं, वो एक पहर था एक ज़िंदगी का जो हमने देखा है, जो हमें देखने में मिला। तो एक देसी माहौल था बिल्कुल ही, लोगों में बनावट उस वक्त शायद इतनी नहीं थी, और बिल्कुल एक लगता था कि कोई बंदा अगर बात कर गया तो जो मैं था, हमारा बच्चों का ये एक होता था स्पेशल के बड़ों के साथ बैठना पसंद करते थे। सुभान अल्लाह। उस दौर, वाह 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 वाह। तो वो उनकी सोहबत में बैठते थे। अगर 4 दोस्त हैं तो वो एक बड़े के साथ बैठे हुए, तो ये एक सोहबत थी। अब बड़ा जो है वो आपके हाथ में है,
ہاں تو جو اس وقت ارے واہ واہ، ارے واہ، یہ حقیقت بات ہے ناظرین محترم، یہ وہ حقیقت آپ کے بات ہاتھ میں ہے، تو اس کو ایک دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے کس ذریعے سے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ کلاس میں جب آپ پہلے دن جاتے ہو تو آپ جب بولتے ہو تو آپ کو گھر کی جو رہتل ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہو، ہاں ٹھیک ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ایجوکیشن کیسی ملی ہے، ہاں۔ آپ کے کومنٹس سے، جی ہاں۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے اوڑھنے بچھوڑنے یعنی سے، آپ کی شخصیت میں آپ کے والدین ہیں نا، آپ- آپ کے باؤ اجداد ہیں۔ ایکچولی ملتا ہے، اس پہلا درس جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے خاندان سے ملتا او ہو، ہے، ٹھیک ہے، اور خاندان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خاندانوں کے آج کے دور میں ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کچھ بھی نہیں، ایک سمجھ لیں کہ سوچ ہے، ایسا ہوتا نہیں، جو رہتے ہیں وہ آج بھی رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آج خاندان نہیں رہتے اکٹھے، در حقیقت یہ دیکھیں اگر یہ پانچوں انگلیاں تو ایک جیسی نہیں ہیں، تو وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک حسن ہے زندگی کا، کوئی اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، کوئی ہجوم میں رہنا پسند کرتا ہے، جی کوئی وادیوں میں رہنا پسند کرتا ہے، کوئی پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے، واہ واہ، کوئی کہاں رہنا پسند کرتا ہے، کوئی اپنے من میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، سوچ کو آپ کیا اسے کرتے ہیں، روک نہیں سکتے آپ، اپنی ایک انفرادی، تو ہر بندے کو ایک سوچ دے کے اللہ تعالیٰ جی نے ہاں، دنیا میں بھیجی ہے، جی ہاں، تو آپ دیکھیں کہ آپ مستفید کتنے ہوتے ہیں لوگ آپ سے۔ جی جی۔ اچھا عارف صاحب، آپ نے اپنے دائرے کے گفتگو کی رو میں یہ بھی فرمایا کہ جب ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، جب میں نے چمٹا سنبھالا تھا، تو چمٹا جب آپ نے سنبھالا تو امی جان نے بھی کبھی آپ پر وہ چمٹا اٹھایا، نہیں، وہ چمٹے کبھی تو اشارت کی ہو؟ وہ چمٹے تو مقدر والوں کو بچتے ہیں، ہائے ہائے وہ چمٹے تو جس کو بچتے ہیں اس کے مقدر سنور جاتے ہیں۔ ہائے ہائے تو ہائے، ماں باپ کا پیار ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، سبحان تو یہ تو کمال ہے، یہ تو حسن ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑی ماں جس ڈنڈے نال کپڑے دھوندی ہوندی سی، وہ ڈنڈا وہ بچے تے وار کے تے پھر واپس آ جاندے، انہوں دسدی سی کہ نہیں کرنا، تو یہ تو آپ، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ تو آپ جانوروں میں بھی یہ فطرت پائیں گے، دیکھیں گے، تو کسی ککڑی نو ویکھو تو وہ بچے اگر کتے رونگ جا رہے ہیں تو گھیر کے واپس لے کے آ رہے ہیں، سو یہ فطرت ہے انسان کی، جو زندہ چیز ہے، جو ماں کی شکل میں آتی، جو باپ کی شکل میں آتی، تو وہی میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جانوروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ایک جو اشرف المخلوقات ہے اس میں تو تہذیب، محبت، بھائی چارہ، امن، پیار، ایک دوسرے کو ملنے سے، کہندے نے پنجابی چ ادھر جانا، کسی کو اداس ہو جانا، تو سو میں سمجھتا ہوں یہ ایک حسن تھا زندگی کا، جو آج بھی لوگوں میں موجود ہے، جو لوگ روایات کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ والدہ حیات ہیں؟ الحمدللہ میری الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا میں آپ کے ظاہرہ کے پروگرام دیکھ رہا تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا جب سے آپ کو سن رہا ہوں، اچھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی اب چھوٹے سے، اب میں بھی چھوٹا سا ہوں، لیکن میں آپ کا بہت بڑا مداح ہوں، آپ کو بہت سنا اور آپ کو بہت پڑھا بھی، آپ کو حقیقتاً آپ کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، امی کے بارے میں آپ بتا رہے تھے اور آنکھیں آپ کی نم ہو گئی تھی، وہ صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کو سننے والوں کی جو دل سے سن رہے تھے، در حقیقت سے ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین جانیے، وہ جو ابھی میں نے انٹرو میں کہا کہ تار چھڑ جاتے ہیں اور ساز بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو امی سے تو بہت محبت کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماں جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کا روپ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حسن دیا ہے، جو ماں کی سوچ ہے، جو ماں کا دیکھنا ہوتا ہے، جو رحمت ہوتی ہے اس کی، وہ نظر آتی ہے اللہ کی، تو ماں باپ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تحفہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بد نصیب ہوگا وہ شخص جو ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی، آپ دیکھیں اس پہ ماں کی قدر کرنے والے کتنے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے روتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، تو مائیں ہوتی ہیں میری جان، ان کی دعائیں تو پھر لگ جاتی ہیں نا؟ ایگزیکٹلی لگتی ہیں، لیکن بات ہے نیتوں پہ، ہاں، دیٹس اے فیکٹ، ٹھیک ہے جی، کہ ایک نیت آپ کی کیسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو، ماں کو کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے، ہاں، آپ نے کس سوچ میں رکھا ہوا ہے، واہ واہ واہ، والدین سے آپ کیسے محبت کرتے ہیں۔ اب ہمارے گھر کا ایک کلچر تھا، ایک بڑی ماں جو زبان ان کی جب اس زبان سے آواز جب آتی تھی سب لوگ بھاگ پڑتے تھے اس طرف، واہ 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 واہ، تو واہ واہ، آج سمجھتے کہ وہ ہم پہر بھول نہیں سکتے، ہاں، کبھی بھی سارے بہن بھائی
एक जगह पे इकट्ठे होते थे, उनको बाकायदा एक आवाज़ जो आती थी बुलंद सी, तो और एक रोब जो बाबा का जो अब्बू का हुआ करता था वो देखते थे। अब उसे याद करते तो एक हुसीन यादों में से वो हमारे पास एक तोहफा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि अम्मी जान आँखों से अब बिनाई जा चुकी? हाँ जी, जा चुकी। वो नहीं देख सकती, लेकिन वही बात है कि दुनिया में रोशनी जो होती है वो औलाद की ज़रिए से अल्लाह ताला ने बख्शी होती है, और शुक्रगुजारी जो है वो बड़ी कमाल चीज़ है। तो उनकी माशाल्लाह से शुक्रगुजारी जो है वो मुझे मेरी याद में है। अल्लाह ताला को वाह 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 वाह, दुआएं करती रहती हैं हर वक्त और अल्लाह नवाजता जाता है। नवाजदा, इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं समझता हूँ माँ बाप दुनिया में रहे ना रहे वो मौजूद होते। वाह 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 वाह। मैंने अपने वालिद को मरहूम नहीं लगने दिया। मैं कहता हूँ आलम लोहार था, आलम लोहार है। हाय हाय हाय। अगर औलादें जिंदा होती हैं तो उनकी याद में आप था नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, ऐसी औलादें। माँ है तो जिंदा है, बाप है तो वो भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। अगर आप हैं तो उसका अक्स आपके पास है। अरे वाह तो कैसे, मैं तो आज भी नहीं समझता कि मेरे वालिद साहब दुनिया से जा चुके। अरे वाह वाह, वो मेरे अंदर मौजूद है, मेरी रूह में मौजूद है, सुभान अल्लाह। मेरी शक्ल में नजर आते हैं, हाँ, मेरी किसी वक्त अक्ल के अक्स में आते हैं, सुभान अल्लाह, कभी किसी को जुबान के जरिए से नजर आता है, सुभान कभी आवाज के जरिए से नजर आता है। सुभान तो ये अल्लाह ताला का ये करम है। औलाद इसीलिए तो मांगी सुभान जाती अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। माँ है तो, बहन है तो, भाई है तो, ये एक अल्लाह ताला ने रिश्ते बना के हुस्न दिया हुआ है। वाह 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 वाह। आरिफ साहब मुझे बताइए ज़रा उस वाक़े की जानिब ज़रा मैं आपका तवज्जो मबजूर कराना चाहता हूँ कि अम्मी ने बहुत दुआएं की, तेनू हीरो कोई नहीं लेना। एक मूवमेंट थी अचानक से, बस वो एक चैनल पे बैठे, उन्होंने पूछा तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे तो मैं तो देखे कोई सीखना सामने आज भी आप बैठे हैं, मैंने कोई आपसे कोई शराइत नहीं रखी। जी हाँ, जी हाँ। सवाए इसके कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता क्योंकि किसी का दिल दुखे, कभी भी नहीं। आर्टिस्ट जो होता है, फनकार जो होता है, वो मिलाने वाला है, सुभान वो अल्लाह। मोहब्बत बिखेरना। हाय हाय हाय। आप बैठे हुए हैं, आपकी गुफ्तगू से किसी की इंस्पिरेशन नज़र आ रही है तो मुझे वो उसकी मोहब्बत याद आ रही है। अरे 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 तो यार मुझे डॉक्टर साहब याद आ रहे हैं, अरे अरे, बड़े डॉक्टर साहब आमर लियाकत साहब। जी। तो मुझे बहुत इत्तेफाक तो नहीं उनसे हुआ कि मैं मिल सकूं, लेकिन बात हुई थी एक दफ़ा, तो इत्तेफाक नहीं हो सका कि मैं उनके साथ बैठता। लेकिन आज उनकी छवि मेरे सामने अरे बैठी है, तो अरे, मुझे अरे, बहुत अच्छा अरे, लगता है। अरे, आपको देखता हूँ तो मुझे दुआ निकलती मेरे दिल से कि अल्लाह ताला आपकी इस नफासत को और इस लहजे को हमेशा कायम दायम रखे। किसी की याद तो रखी आपने। अरे 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 अरे, वाह वाह वाह, ये चाशनी सलामत रहे, ये नजर का हुस्न सलामत, बस ये बाकियात हैं। यही चीज़ है। उस दिन भी मैं ऐसे ही बैठा हुआ बस बात की कि मेरी माँ हमेशा, माँ के लिए जो होता है ना, वो चाहे बच्चा ज़ीरो हो वो होता हीरो है। हाय हाय हाय। तो वो हमेशा मुझे पूछती थी कि आपको हीरो कोई नहीं लेता मेरा पुत्र। मैं कहा नहीं अम्मा, मैं फिल्म से आ गया तो माशाल्लाह गाने में आने लग पे। नहीं 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 हीरो। फिर ऐसी दुआ कबूल हुई, बस उसी माँ का सदका अल्लाह ताला ने भाग लगा दी। बाप को जो दबाता था, जो मैं पाँव दबाता था, पाँव उनके जुतियाँ सीधी करता था, आज उसके भाग लगे हुए। कोई वो नहीं है, बिल्कुल वो आर्टिस्ट नहीं हूँ, फनकार नहीं हूँ, उसकी रहमत का एक समझ लें कि करम है उसका। तो दुआ है कि मेरे अब्बा कहा करते थे कि मैं रवा न रवा, मेरी दुआवां तेरा पीछा करन की। सो पीछा मीन्स कि आपके पीछे आएंगी मेरी दुआएं, मैं जिंदा रहूँ न रहूँ। मैं उनको कभी भी ये तस्लीम नहीं करता हूँ कि वो थे, वो हैं। अरे वाह। तो ये लोग जाते नहीं है। अरे 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 अरे, माँ बाप भी कभी जाता है, हाय हाय हाय, कभी नहीं जाता। अरे वाह वाह। आप याद तो करें, आप अल्लाह को जब याद करते तो 70 मावा जिन्ना प्यार कर दे तो फौरन आ जाता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 मेरे बंदे। उसने कभी आपके अंदर ये नहीं देखा तुम गंदे हो, मैं तुम्हें ये नहीं करूँगा, नहीं, उसने देखा मेरा बंदा है, मुझे याद किया इसने। ज़ेर लहद भी माँ की या वालिद की परेशानी जाती है, यही बात। और हमेशा आपके अंदर वो मौजूद होते हैं लोग, आपके ज़रिए से आप फिर मुस्तफ़ीद होते हैं। वो आपसे अल्लाह ताला अच्छी लायक औलाद, अच्छा उसे कहते हैं कि जो उनके लिए सदका जारिया बन जाए, जो काम करे, जो हुस्न कारकर्दगी ऐसी दिखाए कि लोग कहें कि यार कैसी माँ ने जना है, कैसे बाप का बेटा है। अरे वाह वाह। तो ये नाम रहते हीरोज कभी ये हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। हम जो कहानियाँ सुना करते थे बचपन में,
वो नेक इंसान था जिसकी कहानियाँ होती थी, तो एंड पे वो को कुर्बानी देता था। तो वो कुर्बानियाँ हम लेके घूम रहे होते थे कि किसी माँ ने सौदा मंगवाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ मैं गली चों लंघदा ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇ ਆਰਫੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, मैं ਕਿਹਾ अम्मा जी मैं सौदा ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। अच्छा अल्लाह पुत्त मेरे वास्ते भी ये लैनी फलानी, पूरी गली दे मैं सौदे चुक लैंदा सां ते मैं लैके आंदा, सब दियां दुआवां लैंदा सां। एक ठरक हुंदा सी, यानी एक मेरी ये समझ लें कि मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि हर माँ के जो पाँव को हाथ लगा के उसको चूम लेना। वाह वाह, वो कैसी माँ दा पुत्तर है जेड़ा साडे पैरां नूं हथ ला के, इतनी माँओं की दुआएं। हाँ, वो पूरा घर, सारा एक घर लगता था करीमपुरा जो है, हाँ। तो जो जहाँ मैं रेलवे रोड पे रहता था, तो ये चीज़ें होती हैं ये निस्बत से जो आपको घर से मिलती है। वाह वाह, तो इसको बनावट से आप नहीं कर सकते हो। डॉक्टर साहब आपके सामने कुछ भी होगा, अब आपने कहा कि आरिफ भाई आप ऐसे बैठे हुए, तो जब मैंने आपको देखा मैंने कहा यार आरिफ तो मेरे सामने खड़ा है। अरे आरिफ एक्चुअली पहचानने वाले को कहा जाता है। मैं एक्चुअली हाँ वही बात, पहचान लिया ना। मुझे किसी ने पूछा कि आप यहाँ रहते हैं तो इस घर में कौन कौन होता है, मैंने कहा ये आलम लोहार का डेरा है, हाँ। इसमें सब आरिफ रहते हैं। हाँ सर आलम लोहार का डेरा है, है। इस पे सब आरिफ रहते हैं। हाँ, जो खादम है प्यार करने, वो बाहर जो गेट खोल रहा है वो भी आरिफ है, जो अंदर बैठा रहा ये आरिफीन है वैसे। वाह वाह वाह, ये बात है आपकी अप्रोच की। सुभान अल्लाह। कोई किसी को किसी का कामा बना के अल्लाह ने नहीं भेजा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। ये है कि उसने ये निस्बत चेन बनाने के लिए कि ये रास्ता है, इस नज़रिए से आप चलते जाओ और एक दूसरे के काम आते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक है, तो वो निस्बत है जिसके ज़रिए से डॉक्टर साहब इंसान ज़िंदगी मेरे ख्याल से गुजारता है। जो मेरी नाकस सोच ये जैसी भी है, जो मैंने देखा है ज़िंदगी को, वो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। सुभान। तो मुझे आज तक मुझे ये नहीं लगा कि कोई बहुत कमतर आदमी है, कोई बहुत बड़ा आदमी जो है वो तो है ही बड़ा, अल्लाह ताला ने उसको बनाया, तो वो उसका हुस्न देखना चाहिए रब का कि अल्लाह ने उसको बहुत ज़्यादा दिया, बहुत अच्छी बात है। किसी को बहुत उसके मुताबिक दिया, किसी को वो एक है पंजाबी दा शेर है कि इकना नू रब इतना देवे, इकना नू रब इतना देवे बस बस करन जुबानों, हाँ। ते इकना नू रब कुछ भी ना देवे ते एवें ही जान जहानों। उनका भी एक मकसद है दुनिया में आने का। हर बंदे ने अपना ओढ़ना बछोड़ना जैसे अल्लाह ताला ने उसका नसीब बनाया, कोशिश करो, मेहनत करो, आपके हिस्से का आपको मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने, वालिद साहब की चूँकि जिक्र छिड़ गया, उनकी वजह शोहरत क्या जुगने ही थी? बेशुमार चीज़ें थी, कुछ चीज़ें होती जो सर चढ़ के बोलती। हाँ। लोग दास्तानें वो पढ़ा करते थे, पढ़ा करते थे, हाँ। यानी ये नहीं कहा गाया करते। वाह 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 वाह, गौर कर लीजिए, गौर कर लीजिए। पढ़ा करते थे जिसमें एक मैसेज होता था एंड पे, हाँ, कि आप किसी की बद्दुआ ना लेना, आप किसी से मोहब्बत करना तो आप खालिस करना, और माँ की कदर, बाप की कदर, रिश्तों की कदर, ये बयान किया गया। दुल्ला पट्टी, सोनी मेवाल, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, ये जो दास्तानें थी, मिर्ज़ा साहिबा, इसके अलावा सूफ़ी कलाम, मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम, वारिस शाह का कलाम, इसके अलावा बाबा बुल्ले शाह का कलाम, बाबा फरीद सरकार का कलाम, तो ऐसे कलाम पढ़ने वाला इंसान, मैं समझता हूँ कि वो तो ऑब्वियसली वो वैसे भी नाम के आलम नहीं थे, हाँ। वो अमल के आलम को समेटे हुए थे अपने अंदर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमें पॉजिटिविटी मिली अपने बाप से मिली, अपनी माँ से मिली, तो जो पॉजिटिविटी होती है ये बड़ी एक ख़ास तोहफा होता है आपके। वाह वाह। अब आरिफ साहब कथा का मैं माजर चाह रहा हूँ, बड़ा भी वही होता है ना जो सबसे बड़े से डरता हो, हाँ। और उसी के सामने झुकता हो। नहीं जी, बड़ा तो सबसे बड़ा नाम मेरे अल्लाह का है। वाह 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 वाह, उसी की तरफ इशारा है ना। कायनात में उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, कायनात में अल्लाह ही अल्लाह, उस जैसा है ही कोई, और कुछ है ही नहीं। सवाल ही पैदा। और जो नहीं भी मानते उनका भी रब है वो। वाह 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 वाह। चिड़ियाँ परिंदियाँ और ਜਿਹੜੇ लोग ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। पत्थर च कीड़े ਨੂੰ खाना देने वाला, इसे अल्लाह कहते हैं। इससे बड़ा कौन हो सकता है? बड़ा
ایک مقام ملتا ہے آپ کو جسے کہتے ہیں, آپ کسی کو بہت بڑا کہتے ہیں, کسی کو یہ کہتے ہیں, مناسب کوئی نہیں ہوتا, چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, ہائے ہائے, کام چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, ہاں ہاں, جس میں وہ بھی اگر چھوٹا کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ نسبتاً کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, تو آپ کی اپنی مرضی کہ آپ نے کیسے اس کو تولنا ہے, سبحان اللہ, سبحان تو آپ اپنے ترازو میں اسے کیسے لے کے آ رہے ہیں. اللہ, واہ واہ, آپ سے کوئی مستفید ہوتا ہے تو سمجھیں آپ نے بہت بڑا کام کیا. سبحان اللہ, مسافر خانہ ہے ڈاکٹر صاحب, ہائے ہائے ہائے, آپ اور ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, آتے ہیں, باری اپنی اپنی باری آئے, آپ جس کی شبی بیٹھے ہو کہاں ہیں وہ, کتنا علم تھا ان کے پاس, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, ان کی یادیں مجھے, یادیں پازیٹیوٹی والی, محبت والی سب کے دلوں میں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یادوں سے زندہ رہتے ہیں. ایکچولی زندگی تو ہے ہی کم دنوں کے لیے, یہ 60 سال 50 سال, یہ 5 دن 5 منٹ 5 گھنٹے کچھ بھی آپ لگا لیں یہ گزر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, پنجابی کا ایک شعر تھا, جوبن دے ویلے شان سی, جوبن دے ویلے شان سی, ہر تابعہ انسان سی, نشے دا ایک دوران سی, ایک آل ایک لمحے کا, ایک آل دا مہمان سی, ہن پھر نہیں میں آونا, اے جاندی واری کہہ گیا, میں ویکھدا ہی رہ گیا, میں ویکھدا ہی رہ گیا. سو انسان خواب کی طرح زندگی گزارتا ہے, تو زندہ خواب ہے, اس میں کہانی ہے کہ آپ نے کیسے اس کو اڑنا بچوڑنا ہے. میں زیادہ فلسفی زندگی کو نہیں جانتا ہوں, لیکن کتابوں کو بہت پڑھا ہے میں نے, اور جو زندگی گزاری پریکٹیکل اس میں بھی ایسے ہی اڑنے بچھوڑنے مجھے ملے. تو کیونکہ بڑا خالص ماحول اس وقت تھا, خالص آج بھی ہے, خالص لوگوں کے لیے جو جیسا رہنا پسند کرے وہ آج بھی ہے. موسم نہیں بدلتے, اللہ کی قدرت نہیں بدلی, انسان بدلتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تقاضے بدل جاتے ہیں. واہ واہ, نہیں بدلنے والے تو نہیں بدلتے لوگ, جو تہمت کرتا پہنتے وہ آج بھی پہنتے, پہنتے, سبحان اللہ, جو نسبت سے رہتے وہ آج بھی رہتے. سبحان اللہ, یہ نہیں کہ وہ لوگ مٹ گئے ہیں, وہ آج بھی ہیں بھائی. آپ کی نگاہ ہونی چاہیے اس کو دیکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, خوبصورت خوبصورت, وقت وہاں ٹھہرا ہوا ہے, ہاں, لیکن آپ آگے بھاگ گئے. بھاگ گئے, آگے بھاگ گئے, تو حقیقت, جب پیچھے آتے ہیں ہاں تو جنہوں نے آگے بڑھایا ہوتا ہے وہ نہیں موجود ہوتے. ہاں, وہ ہے نا, میں معذرت چاہ رہا ہوں قطع کلامی کی, کہ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر, ترقی آگے جانے سے نہیں, آگے بڑھنے سے نہیں, بلکہ 1400 سال پیچھے جا کر آقا علیہ السلام کے فرمودات اور ان کے فرامین پر عمل کر کے ترقی ہوگی. کیا بات, یہی ترقی ہے, آگے بڑھ کر نہیں ہوگی, پیچھے جا کر ہوگی. بالکل, وہاں سے روایات ہیں, جانا پڑے گا نا بھائی, ہمارے ہیرو ہیں, ہاں, ہم لوگ وہاں سے بہت ساری انسپریشن لے سکتے ہیں. وہی تو ہیں, زندگی معاف کرنا جانو, ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کوئی برائی کرے کوئی بات نہیں, اور کر لے, برا کہ اور کہہ لے, میں صدقے جاؤں ان کی شان کے. کہاں اب میں وہ نسبت سے بیان کروں گا تو پھر کچھ اور کہاں سے کہاں چلا جاؤں گا. میں صدقے جاؤں ان ہواؤں کے جو اس وقت موجود ہوں گے, صدقے جاؤں ان راہوں کے جہاں قدم لگے ہوں گے, تو میں صدقے جاؤں اس وقت کے, جن آنکھوں کے صدقے جاؤں جنہوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو نسبت کی بات ہے, جس کے آپ عاشق ہیں. کہندے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, 100 عذر بہانے کر کے اودے ہی مرنے مردا. کچھ بھی نہیں, خوبصورتی بھی آتی ہے اور چلی جاتی ہے یار, کچھ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب. ایک جوانی آتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے, ایک بچپن آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے, جو آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں رات دن مستقل کوششیں, رات دن مستقل کوششیں, زندگی کیسے بہتر بنے. رات دن مستقل کوششیں, زندگی کیسے بہتر بنے, کتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں. کہ سب کچھ چھوڑ دیا, رشتے چھوڑ دیے, یہ بھی چھوڑ دیا, وہ بھی چھوڑ دیا, پھر ایک وقت آیا پھر دنیا چھوڑ دی. یار کیا, کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ مل لو, اچھا مل لو, یادیں بناؤ, خوبصورت یادیں. یہی زندگی ہے, یہی حسن ہے. محبت سے بولو, محبت کی بات کرو, امن کی بات کرو. کاش ایسی دنیا بنا دے اللہ کہ پوری دنیا میں کہیں غم نہ ہو, پوری دنیا میں کہیں جنگ نہ ہو, پوری دنیا میں کوئی لڑتا نہ ہو, امن ہو, محبت ہو, بھائی چارہ ہو,
और मोहब्बत से दुनिया आए और अपना अपना टाइम पूरा करके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आरिफ साहब, आज भी जब वालिद साहब को याद करते हैं तो उनका कौन सा कलाम आप गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं? ओहो, बड़े कलाम हैं मेरे, बड़े जो याद आते हैं तो मैं गाता हूँ। ज़रा पढ़कर ज़रा हमें भी मुस्तफ़ीज़ कर दें और हमारे नाज़रीन को भी। ओ दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे डुब जाईदा, ए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे डुब जाईदा, ए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाई। वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह, नहीं किसी ने सुनाई था। मैं एक वाक़या शेयर करूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं बहुत छोटा सा था तो हमारे वालिद साहब ने हमको कैसेट ला कर दी, तो उस पर ये मुसलसल मैं सुनता रहता था। अच्छा, माशा, ये बहुत मुसलसल मैं सुनता रहता था, तो मुझको शेर याद हो गया। इजाज़त हो तो मैं ज़रा गुनगुनाऊं। ए गल ते हर कोई जानदा ए, मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा, ओ नबी पीर फकीर इमाम ज़ादे ते संग छड़ गए ने यारां बेलियां दा, ओ रांझा बाइयां नू छड़ फकीर बनया, तीर छड़ गए पूरे सहेलियां दा, ते एक दिन असां परदेसियां इथों टुर जाना, ओ कुंडा मार के इन्हां हवेलियां दा, ओ छड़ यार आरिफ तेरा दुनिया ते कम की, ओ भी टुर गया जे दे दम ना दे दम सी, एवें हारी सारी नू नहीं सजने बनाई दा, ओ दिल वाला दुख। आप देखिए, आप अगर गा रहे हैं सुभान, तो याद ऐसी थी जो आप गा रहे हैं। हाय हाय हाय, अगर याद ऐसी ना होती तो शायद आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते। हाय 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 हाय, ये हुस्न है, सुभान अल्लाह, ये हुस्न है उन बोलों का, सुभान अल्लाह, ये हुस्न है उस शख्सियत का जो अपने वो बोल छोड़ के गया, वाह वाह, जो लोग आज भी उसको वैसे ही अप्लाई करते हैं सुभान अल्लाह, एक दूसरे के ऊपर। सुभान, तो ये चीज़ें यादें बन के जिंदा रहो, हाँ वाह वाह, इबरत बन के जिंदा ना रहो। हाय हाय हाय, वाह वाह भाई, कमाल गुफ्तगू, कमाल गुफ्तगू, कमाल गुफ्तगू, बोल मिट्टी दिया भाग्या। बोल मिटी दिया बाव्या तेरे दुखन मार, मुका लिया मेरा सोना माही, आ जाओ हाय बोल मिटी दिया, वो मिटदा मैं बाबा बनाया, मिटदा मैं बाबा बनाया, वो उत्ते चांद दिया कैसी है वतना
जहां बोल पड़ेगा, बोल पड़ेगा हारिस साहब, बोल पड़ेगा। असल में पुकारने वाले पर होता है ना, उस पर मुनसिर होता है, उसी पर इंसार करता है। हाँ बोलता है। आपकी आंखों की नमी बुलवा देगी। हाँ ये नमी मुसलसल अगर गिरती रहेगी तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, तो वो तो मिट्टी है भाई, हाँ और वो बोलेगी। मिट्टी का बना हुआ है वो, मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, हाँ, मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, मिट्टी दा संसार, मिट्टी दे सन बादशाह ते मिट्टी दे दरबार। ये बाबा खुर्शीद साहब, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे। मैं मौजूद नहीं था, कहीं प्रदेश में था, लेकिन उनकी कुछ यादें बेशुमार, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत इलाही नसीब आमीन, करे। इलाही आमीन। बहुत प्यारे इंसान थे। तो ये कुछ चीज़ें होती जो लिखी जाती हैं, वो ताहियात, सुभान अल्लाह, यही लफ्ज़ जो हैं वो आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी कुछ 2-4 सवालात हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह। हाँ, आरिफ साहब, मुझे आप ये बताइए कि ये जो दर्द है, ये जो कैफियत है, ये जो इज्जो इंकिसारी आप में मौजूद है, ये वो चीज़ है जो रब के पास भी नहीं है। आजी रब के पास नहीं है, नहीं वो तो है ही नहीं रब के पास नहीं है जो आप, लेकिन रहम बहुत है। हाय 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 हाय, वो है ही गफूर रहीम, मैं सदके जाऊं, गफूर रहीम है, वो लेकिन आजी इंकिसारी, रहम इतना है कि आजजी नफी हो जाती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, आजजी कुछ भी नहीं रह जाता। सुभान अल्लाह, सुभान, बंदा मिट जाए नाम उसका आ जाए। हाय 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 हाय, वो इतना रहम रखने वाला, इतना रहीम है, सुभान अल्लाह, इतना माफ करने वाला। हाय हाय, सदके जाऊं, सुभान अल्लाह, सुभान सोने अल्लाह। रब। ये जो आंखों में नमी है, ना जाने किसकी कमी है। ये शेर नहीं था, ये गुफ्तगू के रूप में बस। जमा उम्री में आपने अपने शरीक हयात को भी खो दिया, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कितना बदल गई ज़िंदगी आरिफ साहब उनके बाद? ज़िंदगी हर लम्हा बदलती है। ज़ाहिर है एक ज़िंदगी का वो साथी जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जोड़ा ही बनाया था, हाय, उससे पहले कोई रिश्ता नहीं था। हो, इसी के इंसाफ में आगे फिर अल्लाह ने रिवॉर्ड दिए। हाँ, जिसने अच्छा पहर गुजारा उसको माँ की शक्ल दे दी, ओ, जिसने बहुत ज़्यादा पहरेदारी की उसको बाप बना दिया। फिर उनने चाशनी दे दी दुआ और बद्दुआ की, कि माँ दुआ भी दे तो माँ की बद्दुआ भी लग जाती है, लेकिन माँ बद्दुआ देती नहीं देती। तो बाप जो है इंसाफ उसको दे दिया। तो जिसने बाप के साथ इंसाफ कर दिया, समझे उसने रब को राज़ी कर लिया। सुभान, क्योंकि कहीं भी अल्लाह ताला ने अकेला माँ और बाप का नहीं, वालिदैन का जिक्र किया। हाँ, वालिदैन का जिक्र, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये दो ही रिश्ते, इसके लिए अल्लाह ताला ने वो जब बिछड़ता है तो जाहिर है एक ज़िंदगी की जो एक रफ्तार है वो रुक जाती है। हाय हाय, लेकिन एक जिम्मेदारी जो कि मैं समझता हूँ मेरी माएँ बहनें जो देख रही हैं, माँ बनना बहुत मुश्किल है। माँ जब से मैं बना हूँ मुझे पता है कि माँ होती क्या है। पहले बेटे के ज़रिए से पता था कि मैं औलाद हूँ, उसका आशिक था। अब तमाम माँ को सलूट है कि जो अपने बच्चों के साथ जो बिहेव मोहब्बत करती है। अब दर हकीकत माँ का सभी किरदार अदा माँ, कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को अब माँ की तरह दिखना पड़ता है, तो जाहिर है। तो वो इतनी शफीक थी, इतनी प्यारी थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा अदब दिया उनको, और मैं खुश हूँ उस पर। उसने जो पहर गुजारा मेरे साथ, नफ़ी के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारा, खूबसूरत यादें छोड़ के गई। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा जब तक ज़िंदा रहूँगा उसको दुआ देता रहूँगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वफादार शोहर हैं, ज़ाहिर है कि आप बच्चों को उनकी दूसरी अम्मी की सूरत में आपने, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से उसको पूरा करने की, कि मेरे बच्चे जैसे, देखिए जो कफ़ालत माँ बाप कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अब मैं वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जो मेरे बच्चों की मर्ज़ी की। वाह वाह।
तो बाकी जब रहमो करम पे आएगा अल्लाह ताला, वो करम करने वाला है, निस्बत वो बनाने वाला है। सुभान अल्लाह। इसमें मैं यही दुआ करता हूँ, जहाँ जहाँ भी किसी के बच्चियाँ बच्चे हैं, अल्लाह ताला खूब रहमत करे उन पर, सुभान अल्लाह। इलाही माँ बाप खूब लुत्फ़ अंदोज़ हों, और जो माएँ हैं वो अपने बच्चों की खुशियाँ देख के दुनिया में जाए। वाह ये वाह ख्वाहिश है मेरी। वाह। बाप है तो उस पूरी ज़िंदगी देखे अपनी औलाद की, सुभान। तो फिर ज़िंदगी के मेले। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। आपके वालिद साहब के चूँकि 8 बेटे थे, आलिम लोहार साहब के। अच्छा, फिर आलिम लोहार के 8 बेटों में से इस पूरे आलम ने एक ही आलम को दोबारा पाया आपकी सूरत में, लेकिन आप चूँकि आरिफ हैं, आप किस आरिफ को देखते हैं कि ये आरिफ होगा? वो एक आलम में से 8 आलम थे। हाँ, वाह 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 वाह। एक आलम में से 8 आलम। 8 आलम थे। हाँ, अपने अपने काम के सारे आलम हैं, हाँ, क्योंकि वो आलम के बेटे। हाँ, आलम पहचाने ना पहचाने मेरे वो आलम है। हाँ, तो मेरे लिए बड़ा भाई बाप की निस्बत है, हाँ। बाप की हूबहू शक्ल है, सुभान अल्लाह। बाप की रूह है उसके अंदर। बाकी सारे आलम है। अल्लाह वाह। ताला सबको सलामत रखे। अब मेरे 3 आरफ हैं। हाँ, वाह वाह वाह। वो मेरा 3 उम्र का, मेरी 3 जिंदगी का हिस्सा है। यानी जिंदगी के 3 पहर। 3 पहर मैं बोला करता हूँ। हाँ, वो मेरे 3 पहर हैं, सुभान तो देखता हूँ तो अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। और जिस तरीके से आप माशाल्लाह हैं, अरे, गाने बजाने में मैं उनको कभी भी इंसिस्ट नहीं किया, ना ही मैं लेके आता हूँ। वो उनका शौक है, पैशन है, लेकिन पढ़ाई की तरफ फुल गौर है। हाँ माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि खूब पढ़ें, सुभान अल्लाह। और दीन की और दुनिया की उनको क्या उसे कहते हैं कि अवेयरनेस। हाँ, जाहिर है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। बस मैं आखिरी कुछ सुनना चाहता हूँ आपसे, और फिर उसके बाद जाहिर है कि हम नेक्स्ट की जाने बढ़ेंगे। वे अखियाँ तो फुल हुई। ओए वो तो डाडी फरमाइश है। कुछ हमारे लिए भी हो जाए ना भाई, अभी हम नौजवान है भाई। अखियाँ तो फूल होई, प्यार कर बैठी। हाय अखियाँ तो फूल होई, प्यार कर बैठी। तो खेबाजा तेरा इतबार कर बैठी। हाय अखियाँ तो फूल होई, प्यार कर बैठी। सुभान अल्लाह। ये दर हकीकत भूल आंखों की होती है, बर्दाश्त दिल को करना पड़ता है, फिर मामला खराब हो जाते हैं बहुत हद तक। ये हकीकत बात है। खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए, लेकिन हो जाते हैं ना भाई, खराब हो जाते हैं भाई। सुभान अल्लाह। आरिफ साहब, ये जो ऊंचा सुर आप लगाते हैं, ये फिर गले की हिफाजत कैसे करते हैं? खाने पीने में कोई एतदाल या म्याना रवि इख्तियार करके क्या करते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके चाहने वाले हमको सुन रहे हैं, वो ऐसा फास्ट फूड खाते हैं, गले उनके ऐसे बैठ जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। कई लोग पकोड़े खा के गा रहे होंगे, उन्होंने बारे च की शायद। ये रब देता है, उसकी मेहरबानी। वाह वाह, मेहरबानी, हाँ, उसी की मेहरबानी। सुभान अल्लाह। कुछ भी नहीं है मेरे पास, हाँ, ना गाने बजाने वाला हूँ। वो बड़े उस्ताद होते हैं, सुभान आला लोग होते हैं, वो घराने होते हैं, हाँ, कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ आरिफ लोहार साहब मौजूद थे, और इनके लिए आखिर पर जाते जाते यही कहूँगा कि इन्होंने तमानियत बख्शी सुनने वालों को, देखने वालों को, और एक तरीके से एक पूरे आलम को। वो इस तरीके से नाज़रीन मोहतरम के हमारे यहाँ हमने देखा कि चिमटे को सिर्फ जलाया जाता है और हमेशा से जलाया जाता रहेगा, लेकिन इन्होंने चिमटे को एक फ़कीरी साज बना लिया। ना सिर्फ फ़कीरी साज बनाया, बल्कि चिमटे को अपनी तरफ से एक हयात बख्श दी, और ऐसी हयात बख्शी कि अब चिमटा भी वो, जाहिर है कि लोग उस चिमटे को देखने की एक हसरत रखते हैं कि भाई उस चिमटे को देखा जाए। बेहतरीन फ़कीरी साज को अपनाए हुए हैं, फ़कीरी रंग को, फ़कीरी लिबास को। इनके बारे में मैं पूरी शब बोलता रहूं तो शायद अल्फाज कम पड़ जाएं और वक्त
गुजरता रहे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त अता फरमाया, इनायत फरमाया। आखिर पर जाते जाते, बस जाते जाते, क्योंकि जाना तो है, लेकिन जाते जाते मोहब्बत दे दिल चों पुले खिने जाते, क्योंकि जाना तो है लेकिन मोहब्बत दे दिल चों पुले खिने। मोहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, ओ जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। सुभान अल्लाह। सर आपने चिमटे को हयात बख्शी, तो मैं वो जो पहले रेख्ता के एतबार से एक लफ्ज़ मैंने ज़ाहिर नाज़रीन की तस्हीह की कि चिमटा और चुमटा, हमारे यहाँ चुमटा भी बोला जाता है ना, लेकिन चुमटा तो चूमना है, तो मुझको ज़रा चुमटा करने दें अगर आपकी इजाज़त है। अल्लाह सलामत, अल्लाह आपको सलामत, आपको सलाम। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ना भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महफूज हो सकें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामी नासिर।